Good morning, children. I think all are fine, all are safe, all are doing well. Okay, all have joined the class. I hope so. And all are going through the lessons, whatever we are doing. So, today we are going to start a new lesson. In the last class, I have told you about the handlooms and handicrafts. In handicrafts, I told you about basket making, how people make baskets and how they sell it, what is the rate they are getting, or how much they earn monthly. Everything I have told you. Okay, so uh, again, how many bundles they bring, from which village they bring, all I think you all have understood. Then handlooms also, I told you about the textile, that is handloom. Ikat making, Pochampalli sarees, about I told you about Pochampalli village. Okay, so which is a patent village who can make only Pochampalli sarees, okay, world famous sarees. So this also I told you. Then how the problems, that is the problems they are facing, and how the cooperative societies are helping them by giving them that is डायरेक्टली मिडिल को नहीं रख के डायरेक्टली वो लोग कैसे वो लोग को मटीरियल दे रहे, कैसे वो लोग को डिज़ाइंस दे रहे, and directly they are getting the benefits out of that. Okay, everything we have learned. So today I'm going to tell you take a new lesson, industrial revolution. What is revolution? Revolution is change. Okay, something change. So in the previous chapter, that is all the various that is we have learnt about various ways in which things are made by artisans. Okay, then we also read that many of them are not able to compete with the machine made products, and that many people have stopped practicing their professions in, okay, all this. Okay, so now today we are going to learn, that is how machines have come to dominate the way in which products are made and how they impact the lives of people. Okay, so increasing control of traders. So this happened from 1580 to 1880. इसके बीच में का पढ़ेंगे. So trade between countries like America, Europe है, Africa है, and Asia, this has increased. Okay, textile trades to expand. Textiles बोल तो कपड़ा, वो भी expand होना शुरू हो गया. So European traders began to use putting out system. एक पुटिंग आउट सिस्टम निकाले लोग, यूरोपियन ट्रेडर्स. व्हाट इज दैट पुटिंग आउट सिस्टम? दैट पुटिंग आउट सिस्टम आई टेल यू. तो पहले ये लोग, ये स्मॉल फार्मर्स है, आर्टिसंस है, सो ये लोग टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट इन 1500 टू 1800, ये पीरियड में पीजेंट्स को क्या हुआ, उनके फार्म्स और उनके गेजिंग लैंड्स, ये सब उन लोग के लॉस हो गया उन लोग को. ओके, तो वो लोग क्या करे, पूरे टेक्सटाइल वर्क में ज्वाइन हो गए. ये टेक्सटाइल वर्क ही उन लोगों को हेल्प करा जहाँ पे वो लोग अपना जीना कर रहे थे. दे स्टार्टेड दे लिविंग. सो आई टेल यू नाउ व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम. पुटिंग आउट सिस्टम बोले तो क्लॉथ traders in Britain, they purchased cotton from the suppliers and carried it to the spinners. Then the yarn was taken to the traders, okay, to the next stage of production. Okay, then the weavers. The cloth was then taken to the fuller and final to the dyer who gave it color. Okay, देखो एक कंट्री में नहीं हो रहा था ये प्रोसेस. पहले क्लॉथ सप्लायर से ले रहे थे, फिर उसका यार्न ट्रेडर्स के पास जा रहा था, फिर प्रोड्यूस हो रहा था, फिर वीवर्स के पास जा रहा था. उसका लास्ट और फुलर और फाइनल स्टेज क्या था, कलरिंग. तो वो कलरिंग के पास डायर के पास जा रहा था. डायर के पास जाने के बाद वो लास्ट उसका जो फिनिशिंग वर्क था, दैट वाज डन इन लंदन, ब्रिटेन. बट बिफोर इट वाज सोल्ड इन द अदर कंट्रीज, द टेक्सटाइल गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हु वेर कंट्रोल्ड बाय द ट्रेडर्स. समझ में आया? जो भी प्रोड्यूस करना था, लोग प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे थे. लास्टली उसके बाद कहाँ जाके कंट्रोल हो रहा था, वो बाय द traders. Okay, so this system, it is called as, that is putting out system, trade putting out system. So then what happened in the beginning of industrial revolution, that is from 1750 to 1850 AD. AD means after death. Many changes took place during this period. Okay, 1750 में क्या हुआ, machines on steam power began to be increased. Okay, used to produce goods. Okay, machines goods produce करना start हो गया.
to move goods from one people, that is people from one place to another, several people living in villages. तो कैसे पहले क्या हो गया, क्या होता, एनिमल्स यूज़ करते थे वो लोग वैसा, बट दिस दे हैव स्टार्टेड, दैट इज़ मोटर व्हीकल्स, वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया था, तो उससे वो लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस को जा रहे थे. सो टुडे वी यूज़ मेनी मशीन्स एंड मशीन मेड गुड्स इन आवर डेली लाइफ. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ मशीन एज इन ब्रिटेन. सो अभी अपन लोग अपनी लाइफ में जो भी मशीन मेड गुड्स यूज़ कर रहे, दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन ब्रिटेन. सो एज द डिमांड ऑफ क्लॉथ एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीज्ड, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गया. So many artisans wondered how they could get increase the production to keep up with the demand. तो लोग डिमांड ज़्यादा होते गया वो प्रोडक्ट का, तो उसके बाद ये आर्टिसंस वो सोचना शुरू कर दिए कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाहिए. ओके, सो नेचुरली अपने को पता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपन प्रोड्यूस करते. अब डिमांड समझो, अपना प्रोडक्शन सिर्फ कोई सी भी चीज़ अपन एक 100 फॉर एग्जांपल 100 kgs कुछ भी अपन प्रोड्यूस कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो अब उसका डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो नाउ दिस डेज देर इज ग्रेट डिमांड फॉर द क्लॉथ, बट वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस मोर क्लॉथ्स टू मीट दिस डिमांड. सो द क्लॉथ मेड इन आवर लूम्स इज एक्सपेंसिव. जो लूम्स में अपन क्लॉथ बना रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है. लूम्स में बहुत टाइम लगता है बनने के लिए, और उसका डिमांड अपन पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते. अपने को 1 महीने का टारगेट है, 1 महीने में अपने को 1000 मीटर्स कितना भी क्लॉथ बनाना है, तो उसके लिए इतने बंडल्स है, इतने देना है अपने को, तो इसीलिए डिमांड ज़्यादा है उसका. तो अपन लूम्स में, वीवर्स जो लूम्स में बनाते, वो अपने को सफिशिएंट नहीं हो रहा था, इसीलिए नाउ पीपल हैव मेड मशीन्स, machine made goods we are using now, which we are getting at the lower prices also. Okay, अभी देखो आप कपड़े का, टेक्सटाइल्स का ले लो, at a very cheaper rate also we are getting the cloths, है ना, मिल रहे ना अपने को, but at a lower price. So machine made goods का क्या है, डिमांड कम है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है. ओके चिल्ड्रन, then more people would buy our cloth and we could earn more money. ओके, तो इससे मोर ज़्यादा पीपल भी खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे भी इससे कमा सकते हैं. ठीक है. So as a result, the pressure of the trade and work, several people attempt to make this machines. Okay, now first machine, it was made by James Watt's invention. Okay, so James Watts, he was the first person who made a English craftsman who invented machines. He noticed that steam had so much strength that it could move enormous weight. Okay, steam के पास इतना strength है, enormous weight बोले तो, what is enormous? More, big. Okay, large amount of weight वो move कर सकता है. To tap this energy, he made a machine which would run with the help of steam and would not need men or animal to drive it. ठीक है, तो मशीन ऐसी बनाया उन्होंने जिसके लिए, जिसको रन करने के लिए, चलाने के लिए ना आदमी की ज़रूरत है ना एनिमल्स की ज़रूरत है, सिर्फ स्टीम से चल सकती है, विद द हेल्प ऑफ स्टीम. ही शोड हिज इन्वेंशन टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉल्ड बोल्टन. तो उन्होंने ये जो स्टीम इंजन बनाया, स्टीम मशीन बनाया, उनके एक फ्रेंड थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बताया वो. हिज नेम वॉज बोल्टन एंड द टू अर्नड एंटर्ड. ये दोनों पार्टनरशिप में एंटर हो गए. क्या पार्टनरशिप थी इनको? बोल्टन इन्वेस्टेड मनी और इन्होंने सैलरी दे रहा, वॉट्स को सैलरी, जेम वॉट्स को सैलरी दे रहे थे. वो एंटर हो गए दोनों, एक पार्टनरशिप में आए. पार्टनरशिप में आने के बाद बोल्टन क्या करे, मनी इन्वेस्ट कर रहे थे और वॉट्स ये मशीन. ओके, सो दे मेड एन एग्रीमेंट सेइंग दैट 2/3 ऑफ बोल्टन एंड 1/3 ऑफ टू वॉट, यानी जो भी उनका प्रॉफिट आएगा, जितना भी वो लोग अर्न करेंगे, एक बार जो मशीन चली है, कौन सा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा, यानी उसका 2/3
बोल्टन को जाएगा और 1/3 इसको मिलेगा। यानी जैसे 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ उनको जाएंगे और 2 रुपीज़ इनको आएंगे, ठीक है ना। 75% उनको और 25% वॉट्स को। टुगेदर दे मेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीम इंजन्स बनाए उन लोगों ने, लार्ज इंजन और लार्ज नंबर में बना दिए। फिर उसके बाद दे सोल्ड देम एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो मशीन्स बना के वो लोग सोल्ड करे, उससे बहुत सारा प्रॉफिट मिला। वंस इट वॉज एस्टैब्लिश्ड that machine could run on steam. Such machines were made for all kinds of workers: spinning, weaving, making iron tools, driving vehicles and ships, etc. Okay, so ये machine क्या work कर रहा था? They were spinning भी कर रहे थे, weaving भी कर रहे थे, making iron tools, driving. So all this was made by them.